بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم مومن خان مومن کی غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مومن خان مومن کا تعارف پڑھتے ہیں۔ مومن خان مومن، جس کا اصل نام مومن خان اور تخلص مومن تھا، آپ نے بہادر شاہ ظفر اور ابراہیم ذوق جیسے بڑے بڑے شاعروں کے ہوتے ہوئے نام کمایا۔ آپ صرف اور صرف غزل کے شاعر تھے۔ آپ کی شاعری میں ترنم، موسیقی، سوز و گداز، معنی افرینی جیسی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ کو علم نجوم پر بھی عبور حاصل تھا۔ آپ نے اپنی موت سے 6 ماہ پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی۔ آپ نے 1852 میں وفات پائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں پہلے شعر میں شاعر کیا کہتا ہے۔ پہلا شعر شاعر کا کچھ یوں ہے: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اثر ہونا یعنی متاثر ہونا، متاثر کرنا، اس کو یعنی محبوب کو، ذرا نہیں یعنی میری بات کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ رنج عام طور پر تکلیف کے معنوں میں آتا ہے، دکھ کے معنوں میں آتا ہے، مصیبت کے معنوں میں آتا ہے۔ راحت فضا یعنی خوشی کے بڑھنے کا باعث نہیں بنتا، میری خوشی کے بڑھنے کا باعث نہیں بنتا۔ اب اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ محبوب کو میری باتوں کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ میرا رنج میرے لیے سکون پیدا کرنے کا باعث نہیں بنتا۔ محبوب کو میری باتوں کا اثر نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ میرا رنج میرے لیے سکون پیدا کرنے کا باعث نہیں بنتا۔ اب اس میں معاون کے طور پر جو شعر آنے ہیں وہ درج ذیل ہیں: ہم کو ان سے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہم کو ان سے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ دوسرا شعر معاون کے طور پر کچھ یوں ہے: اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس تیسرے شعر کی کہ جو معاون کے طور پر آئے گا: آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اب ہم ایک اور شعر کی بات کرتے ہیں جو کہ اس غزل کی تشریح میں آئے گا: تمہاری یاد کے لمحے بڑے دلچسپ ہوتے ہیں، تمہاری یاد کے لمحے بڑے دلچسپ ہوتے ہیں، بس اتنی سی دیر کچھ احساس تنہائی نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس غزل کے دوسرے شعر کی۔ دوسرے شعر میں شاعر کچھ یوں کہتے ہیں کہ ذکر اغیار سے ہوا معلوم، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناسخ برا نہیں ہوتا۔ ذکر اغیار سے مراد غیروں کا ذکر، دوسرے لوگوں کا ذکر۔ اب معلوم ہونا یعنی پتہ چلنا۔ حرف ناسخ، ناسخ کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو، یعنی یہاں حرف ناسخ کا مطلب ہوگا نصیحت کرنے والوں کی باتیں، بری نہیں یعنی غلط نہیں ہوتی۔ اب دوسرے شعر کا مفہوم کچھ یوں بنے گا: جب محبوب نے غیروں کا ذکر کیا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ نصیحت کرنے والوں کی باتیں بری نہیں ہوتی۔ اب دوسرے شعر میں جو معاون کے طور پر شعر آئیں گے وہ درج ذیل ہیں: غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ الہی آگ لگ جائے زمانے کی دو رنگی کو، جیسے جسے نازک بدن سمجھتے رہی وہی پتھر نکلے۔ الہی آگ لگ جائے زمانے کی دو رنگی کو، جسے نازک بدن سمجھتے رہے وہی پتھر نکلتے ہیں۔ دھمکیاں دیتے ہو تم جذبہ دل کے اے داغ، بندہ پرور محبت میں یہ حکومت کیسی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس غزل کے تیسرے شعر کی۔ اب تیسرا شعر زبان زد عام ہے اور بہت ہی مشہور ہوا تھا کہ شاعر کہتا ہے: تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تم یعنی محبوب، کسی طرح نہ ہوئے یعنی
तुम किसी भी बहाने से हमारे ना हुए, वरना यानी अगर ना, क्या नहीं होता यानी हर चीज़ मुमकिन होती है। अब तीसरे शेर का मफहूम कुछ यूँ बनेगा, ए महबूब, मैंने हर तरह की कोशिश की लेकिन तुम मेरे किसी तरह ना हुए, वरना इस दुनिया में क्या कुछ नहीं हो सकता। या ए महबूब, मैंने हर तरह की कोशिश की लेकिन तुम मेरे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं हो सकता। अब तीसरे शेर में मुआवन के तौर पर जो शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। सबकी जानब रही वो निगाहे करम, हम तरसते रहे एक नज़र के लिए। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। ये न थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर और जीते रहते तो यही इंतज़ार होता। ये न थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर और जीते रहते तो यही इंतज़ार होता। अब हम बात करते हैं चौथे शेर की, जो कि मोमन खान मोमन की पहचान बना। चौथा शेर कुछ यूँ है, तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। इस शेर के जो मफहूम बनेगा वो कुछ यूँ है, ए महबूब, जब तन्हाई में मेरे पास कोई नहीं होता तो आलम तस्वर में तुम मेरे पास होते हो। अब इसमें जो मुआवन के तौर पर शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। तस्वर में चले आते तुम्हारा क्या बिगड़ता था, तुम्हारा पर्दा रह जाता, हमारा दीदार हो जाता। अब दूसरा शेर जो मुआवन के तौर पर आएगा, याद को तेरी मैं इस तरह लिए बैठा हूँ, याद को तेरी मैं इस तरह लिए बैठा हूँ जैसे दुनिया में कोई और मुझे काम नहीं। जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है। अगर हम इस शेर की तशरीह की बात करें, इस शेर की बहुत सी खूबी, सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस शेर की खातर गालिब अपना सारा दीवान मोमन को देने के लिए तैयार थे। शेर की खूबसूरती ही शायर के तख़य्युल को बुलंद और आला करती है। जिस शेर को गालिब जैसे शायर ने लेने के लिए अपना सारा दीवान ही निछावर कर देने की कोशिश की, वो कैसा शेर हो सकता है। ये मोमन खान मोमन के आला तरीन शेरों में से एक शेर है। मोमन कहते हैं, ए महबूब, जब ज़बाने भर के लोग मेरे पास मौजूद नहीं होते, मैं जब तन्हा होता हूँ, उस वक़्त मेरे ख़याल की वादी में तू चुपके से चला आता है। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि मेरे पास कोई नहीं है, मगर उस वक़्त मेरे पास मेरा महबूब यानी तू होता है। ये मेरी खुश नसीबी है कि तू मेरे एहसानात और दिमाग पर हावी रहता है और हमेशा मेरे पास रहता है। शायर का कमाल ये होता है कि वो ऐसे शेर भी कह जाता है कि जो ज़िंदगी में ही उसे एक बड़े मुकाम पर ले जाते हैं। मोमन का ये अंदाज़ सबसे निराला और ख़ूबसूरत है। वो कहते हैं, ए महबूब, बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि तुम मेरे पास मौजूद नहीं हो और मैं तन्हाई के अज़ाब को बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मेरे महबूब, जब कोई नहीं होता तो तू चुपके से मेरे ख़यालात में आ जाता है, फिर मुझे ज़माने की फ़िक्र से आज़ादी मिल जाती है। मेरे पास तेरा तस्वर होता है और मैं जी भर कर तुमसे अपने दिल की बातें करता हूँ। ये मेरे लिए आला मर्तबे की बात है कि तू इस वक़्त चुपके से चला आता है जब तन्हाई मुझे मैसर आती है, यानी हमारे दिल में ही बस रहे हो तो फिर ये हमसे हिजाब कैसे। तो अब हम बात करते हैं इस गज़ल के पाँचवें शेर में। पाँचवें शेर में शायर कुछ यूँ कहता है कि हाले दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा, मैं अपने दिल का हाल महबूब को कैसे लिखूं, क्योंकि मेरा हाथ तो हर वक़्त दिल पर रहता है। अब इसमें जो मावन के तौर पर शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। जुल्म सहते हैं कुछ नहीं कहते, अहले दिल बेज़बान होते हैं। जुल्म सहते हैं कुछ नहीं कहते, अहले दिल बेज़बान होते हैं। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।
कासद के आते आते खत एक और लिख रखो, मैं जानता हूँ वो जो लिखेंगे जवाब में। कासद के आते आते खत एक और लिख रखो, मैं जानता हूँ वो जो लिखेंगे जवाब में। अब हम छठे शेर की बात करते हैं, जो कि इस गज़ल का आखिरी शेर भी है। इस शेर में शायर कहता है कि चारे दिल सवाए सबर नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। अब चारे दिल यानी दिल की बीमारी का इलाज, सवाए यानी अलावा, सबर यानी ज़ब्त, सो यानी इसलिए, तुम्हारे सिवा यानी तुम्हारे अलावा। अब इसका जो मफहूम बनेगा छठे शेर का कि दिल का इलाज सब्र है, मगर है महबूब वो सब्र अब तेरे बगैर नहीं होता। अब इसमें भी जो मावन शेर आएंगे वो बहुत ही आसान से आने हैं, जो कि आप लोग पहले भी बार बार पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। गुनाहगार थे बासफ़ा हो गए हम, तेरे इश्क में क्या से क्या हो गए हम। अब हम बात करते हैं इस गज़ल के आखिरी शेर की, जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। क्यों सुने गर्ज़ मुस्तरब मोमन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। क्यों सुने यानी कैसे सुने, गर्ज़ यानी दरख्वास्त, मुस्तरब यानी बेकरार को कहते हैं, सनम बुत को कहते हैं, मुराद यहाँ महबूब है। आखिर यानी किसी भी सूरत में, खुदा नहीं होता यानी खालक की तरह सुनने की अहलियत नहीं रखता। अब सातवें शेर और आखिरी शेर का मफहूम कुछ यूँ बनेगा, ए मोमन तू अपने महबूब को बेकरारी से क्यों पुकार रहा है और अपनी गरज बर्दाश्त पेश नहीं करता। महबूब आखिरकार तेरी बात क्यों कर सुनेगा, क्योंकि सनम यानी महबूब तो खुदा तो नहीं है, बहरहाल अपने बंदे की पुकार को सुनता है। ये जो आखिरी शेर होता है पेपर के हवाले से इतना अहम नहीं होता, क्योंकि जिस शेर में शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो, अपना नाम इस्तेमाल किया हो, वो पेपर के हवाले से इतना शेर अहम नहीं होता। तो इस लेक्चर को सुनने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मोमन खान मोमन की पहली गज़ल में कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।